તો આજે દેશભરમાં રાષ્ટ્રીય એકતા પરેડને લઈને એકતા દિવસની ઉજવણી અને આ સાથે જ અમિત શાહ પહોંચી ચૂક્યા છે કેવડિયા ખાતે। સીધી જ આ તસવીરો ત્યાંથી સામે આવી રહી છે। આજે સરદાર પટેલની જયંતિને લઈ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસના રૂપે ઉજવણીનો કાર્યક્રમ, જેમાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ પહોંચી ગયા છે કેવડિયા ખાતે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી 2 દિવસના ગુજરાત પ્રવાસે છે અને આજે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પર આયોજિત રાષ્ટ્રીય એકતા પરેડમાં તેઓ ઉપસ્થિત રહેશે। દેશના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રીય પોલીસ દળના બીએસએફ, સીઆરપીએફ સહિતના જવાનો પણ આ એકતા પરેડમાં સામેલ થશે। વધુ વિગતો મેળવીએ સંવાદદાતા ધનરાજ બાગલે આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। ધનરાજ, અમિત શાહ પહોંચી ચૂક્યા છે, શું અપડેટ? જી બિલકુલ, અત્યારે પરેડ ચાલી રહી છે અને પરેડની વચ્ચે અત્યારે વિવિધ ઝાંખીઓથી પસાર થઈ છે। સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના સાનિધ્યમાં 31મી ઓક્ટોબરે જ્યારે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે તમામ રાજ્યોની પોલીસ આ એકતા પરેડમાં જોડાઈ છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય રમતોમાં મેડલ મેળવનાર 23 જેટલા પોલીસ અધિકારીઓ પણ આ ઉજવણીમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે। સરદાર પટેલની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે અત્યારે વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા કહી શકાય સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના સાનિધ્યમાં કેવડિયા ખાતે 31મી ઓક્ટોબર રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની જ્યારે ઉજવણી કરાઈ રહી છે, ત્યારે રાષ્ટ્રીય એકતાને વધુ સુદૃઢ કરવા માટે અખંડ ભારતના શિલ્પીની જન્મ જયંતિએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જે રીતે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો, ત્યારે આ વર્ષે કેવડિયા ખાતે એકતા પરેડ, બેન્ડ, પ્લાટૂન પરફોર્મન્સ, સાથોસાથ કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર દળોની સાયકલ રેલી, સાથોસાથ 4 રાજ્યોની પોલીસની મોટરસાયકલ રેલી, માર્શલ આર્ટ નિદર્શન પણ કરવામાં આવશે। સાથોસાથ સ્કૂલ બેન્ડ પ્રદર્શન અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન રાખવામાં આવ્યું છે। રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી જ્યારે થઈ રહી છે, ત્યારે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા છે અને આ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીમાં કેવડિયા ખાતે પરેડમાં 6 જેટલી પ્લાટૂનો પણ જોડાઈ છે, જેમાં દેશના તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રીય પોલીસ દળોની પ્રતિક સ્વરૂપે અત્યારે 54 ફ્લેગ બેરર છે। બીએસએફ, સીઆઈએસએફ, આઈટીબીપી, સીઆરપીએફ અને સાથોસાથ ગુજરાત પોલીસની જે પ્લાટૂન છે એમણે ભાગ લીધો છે। વર્ષ 2018માં જે રીતે પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ વિવિધ આંતરરાષ્ટ્રીય રમતોમાં પદક મેળવ્યા હતા, એવા 23 જેટલા પોલીસ અધિકારીઓ પણ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેનાર છે અને કર્મચારીઓ પણ પરેડમાં ભાગ લેનાર છે। બીએસએફ અને સીઆરપીએફ અને ગુજરાત પોલીસની સંયુક્ત બ્લેન્ડ પ્લાટૂનમાં 76 જેટલા સભ્યો જે ભાગ લઈ રહ્યા છે। ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો ઓરિસ્સાના ગંજામના જે કલાકારો છે એ રાષ્ટ્રીય એકતાની થીમ ઉપર સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની પણ પ્રસ્તુતિ કરશે, ત્યારે આઝાદીથી અત્યાર સુધીની જે યાત્રા પર આધારિત સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો છે તેની પણ પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવશે। સરદાર પટેલની જન્મ જયંતિને લઈને અત્યારે હાલ વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના સાનિધ્યમાં કેવડિયામાં જ્યારે આ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે થોડા સમય પહેલા જ પરેડ થઈ છે અને પરેડ બાદ અત્યારે હાલ જે વિવિધ રાજ્યોમાંથી જે પોલીસ જવાનો છે એ પોલીસ જવાનો જે પ્રમાણે જે રેલી સ્વરૂપે નીકળ્યા હતા, અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી પસાર થઈને તેઓ અત્યારે કેવડિયા ખાતે આવ્યા છે, ત્યારે એ બાઇક રેલી સ્વરૂપે પણ અહીં નિદર્શન કરવામાં આવશે। દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી અત્યારે હાલ જોવા મળી રહ્યું, ત્યાં કેવડિયા ખાતે આ પ્રમાણે જ્યારે પ્રદર્શન આયોજિત કરાયું છે, ત્યારે વિવિધ જે વિજેતા છે, ઓલિમ્પિક પદક વિજેતા છે, તેઓ પણ અત્યારે ઉપસ્થિત છે અને આ રીતે આ વાહનોમાં ઉપસ્થિત થઈને તેઓને પરેડમાં અત્યારે અંદર લઈ જવાશે અને ત્યારબાદ તેમને સન્માનિત પણ કરવામાં આવશે। આ રીતે જોઈ શકાય છે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસને લઈને વિવિધ રાજ્યોના જે પોલીસ જવાનો છે, એ પછી તામિલનાડુ પોલીસ હોય, જમ્મુ કાશ્મીર પોલીસ હોય કે પછી ગુજરાત પોલીસ હોય, સીઆરપીએફના જવાનો હોય, તમામ અત્યારે આ રીતે ઉપસ્થિત થયા છે અને જોઈ શકાય છે અત્યારે જે રીતે રાષ્ટ્રમંડળ ખેલ પદકના વિજેતા છે તેઓ પણ અત્યારે ઉપસ્થિત છે અને આ રીતે જ્યારે તેમને પણ સન્માનિત જ્યારે કરવામાં આવી રહ્યા હોય, ત્યારે વિવિધ રમતવીરો છે એ રમતવીરો પણ અત્યારે જોડાયા છે। આ રીતે કેવડિયા ખાતે જે રીતે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે તેને લઈને અત્યારે જે પોલીસ જવાનો છે તેમાં ઉત્સાહનો માહોલ પણ છે। સાથોસાથ જે રીતે પરેડ કરવામાં આવી હતી એ પરેડ પણ અત્યારે હાલ પૂર્ણ થઈ છે। અત્યારે જે રીતે દ્રશ્યમાં જોઈ શકો છો, એશિયાઇડ ખેલમાં જે પદક મેળવનાર વિજેતા છે એ વિજેતા આ રીતે જોઈ શકાય છે કેવડિયા ખાતે આવી પહોંચ્યા છે અને તેમને પણ સન્માનિત કરવામાં આવશે। ત્યારે કેવડિયા ખાતે વિવિધ અત્યારે હાલ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અને આ પ્રમાણે જોઈ શકાય છે
અમિત શાહ આવી પહોંચ્યા છે અને તેઓ અત્યારે હાલ જે રીતે પરેડ થઈ છે અને પરેડમાં જે રીતે ભાગ લીધો છે, અત્યારે થોડીક ક્ષણોમાં ગણતરીની મિનિટોમાં એક બાઇક રેલી યોજાશે. બાઇક રેલી જે અત્યારે થશે ત્યારે તે વિવિધ રાજ્યોમાંથી તેઓ પસાર થઈને અત્યારે હાલ રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી કરતા તેઓ અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી પસાર થયા છે અને જે રીતે રાષ્ટ્રીય એકતાને સુદૃઢ બનાવવાનો મેસેજ છે, સંદેશો છે, તેમણે આપ્યો છે અને આ પ્રમાણે જોઈ શકાય છે જે રીતે અત્યારે પુષ્પ વર્ષા પણ થાય જોઈ શકાય છે. આર્મીના હેલિકોપ્ટર્સ છે એ અત્યારે આકાશમાં ગગનમાં વિહાર કરતા સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પુષ્પ વર્ષા શરૂ થઈ ચૂકી છે અને આ પુષ્પ વર્ષામાં અત્યારે હાલ જોઈ શકાય છે એક નયનરમ્ય દ્રશ્યો છે એ આકાશમાં જોવા મળી રહ્યા છે. આ પ્રમાણે સરદાર પટેલની પ્રતિમા ઉપર આ રીતે પુષ્પ વર્ષા કરવામાં આવી છે. આર્મીના હેલિકોપ્ટર છે અને આર્મીના હેલિકોપ્ટર દ્વારા આ પુષ્પ વર્ષા કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે સૌ કોઈ ગર્વાન્વિત અત્યારે હાલ અનુભવ કરી રહ્યા છે. રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવી છે ત્યારે દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે આ રીતે કેવડિયા ખાતે આ પ્રમાણે જે ઉજવણી કરવામાં આવી છે ત્યારે જે રીતે અત્યારે હેલિકોપ્ટર દ્વારા જે પુષ્પ વર્ષા કરવામાં આવી છે એ પુષ્પ વર્ષા અત્યારે હાલ સૌ કોઈ નિહાળ્યા છે. એક બાદ એક વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે જે પ્રમાણે અત્યારે હાલ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે આ જે રાષ્ટ્રીય ખેલ રમતમાં વિજેતા હાસિલ કરનાર જે રમતવીરો છે એ રમતવીરો અત્યારે આ પ્રમાણે ઉપસ્થિત થયા છે. ગણતરીની મિનિટોમાં બાઇક રેલી થશે. બાઇક રેલી અત્યારે હાલ અહીંથી પસાર થશે અને ત્યારબાદ જે રીતે અત્યારે હાલ સરદારજીની પ્રતિમા અત્યારે હાલ આપ જોઈ શકો છો કેવડિયા ખાતે આ પ્રમાણે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે જે રીતે દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે આ રીતે વિવિધ જે ઓલિમ્પિક પદક વિજેતા હોય કે પછી રાષ્ટ્રમંડળ ખેલ પદક વિજેતા હોય એ તમામ વિજેતાઓ છે અત્યારે આ રીતે ગાડીમાં સવાર થઈને તેઓને પણ અત્યારે હાલ પરેડ થશે અને ત્યારબાદ તેમને સન્માનિત કરવામાં આવશે. આ રીતે જે કેવડિયા ખાતે કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે ત્યારે દ્રશ્યમાં જોઈ શકાય છે આ કેવડિયા ખાતે દેશના ગૃહપ્રધાન અમિત શાહ છે એ અત્યારે હાલ ઉપસ્થિત થયા છે અને ત્યારબાદ પરેડ છે એ પરેડ અત્યારે હાલ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને આ રીતે જે કેવડિયા ખાતે કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું છે ત્યારે ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો છે એ કાફલો અત્યારે હાલ ઉપસ્થિત થયા છે અને જે રીતના દ્રશ્યો જોઈ શકાય છે કેવડિયા ખાતે આ રીતે જે રાષ્ટ્રમંડળ ખેલ પદકના વિજેતા હોય કે પછી ઓલિમ્પિક પદક વિજેતા હોય એ તમામને અત્યારે હાલ અહીં જે પોલીસ વાન છે એમાં અત્યારે હાલ સવાર કરવામાં આવ્યા છે, તેમને સન્માનિત કરવામાં આવી રહ્યા છે અને આ પ્રમાણે જે દ્રશ્યો તમે જોઈ શકો છો કેવડિયા ખાતે આ પ્રમાણે જે રીતના દ્રશ્યો અત્યારે હાલ એક બાઇક રેલીનું પણ પ્રસ્થાન કરવામાં આવશે. બાઇક રેલીની ખાસ ખાસિયત છે આખા દેશમાં જે જવાનો પોલીસ જવાનો છે જેમણે ભ્રમણ કર્યું હતું એ ભ્રમણ કરીને કેવડિયા ખાતે પહોંચ્યા છે. અલગ અલગ રાજ્યોમાંથી પસાર થઈને ત્યારે આ પોલીસ જવાનો છે એ અત્યારે હાલ પહોંચ્યા છે ત્યારે તેને લઈને અત્યારે હાલ જોઈ શકાય છે જે અલગ અલગ જે પ્લાટૂન છે એમને દ્વારા અત્યારે હાલ પરેડ કરવામાં આવી છે ત્યારે કેવડિયા ખાતે આ પ્રમાણે જોઈ શકાય છે ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ ગોઠવવામાં આવ્યો છે. અત્યારે જે પ્રમાણે એક બાદ એક જે પરેડ કરવામાં આવી છે ત્યારે આ પરેડને લઈને અત્યારે હાલ જોઈ શકાય છે જે દ્રશ્યો છે એ અત્યારે હાલ જોઈ શકાય જવાનોના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા. સરદાર પટેલની જન્મ જયંતિ એ વિશ્વની સૌથી ઊંચી પ્રતિમા ખાસ કરીને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીના સાનિધ્યમાં આ કેવડિયા ખાતે 31મી ઓક્ટોબરની રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી જ્યારે કરવામાં આવી રહી છે ત્યારે આ રાષ્ટ્રીય એકતાને વધુ સુદૃઢ બનાવવા માટે ભારતના શિલ્પી એવા જન્મ જયંતિની જે રીતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ જે રીતે રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો ત્યારે આ વર્ષે પણ ખાસ કરીને કેવડિયા ખાતે એકતા પરેડ છે, પ્લાટૂન પરફોર્મન્સ છે, કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર દળોની સાયકલ રેલી છે, સાથોસાથ 4 રાજ્યોની પોલીસની મોટરસાયકલ રેલી, માર્શલ આર્ટનું નિદર્શન એ પણ વિવિધ કાર્યક્રમો છે એ વિવિધ કાર્યક્રમો થનાર છે. સ્કૂલ બેન્ડ પ્રદર્શનને લઈને અત્યારે હાલ જે રીતે કાર્યક્રમનું આયોજન કરાયું છે તે પણ નિર્ધારિત કાર્યક્રમ અનુસાર પ્રસ્તુતિ કરવામાં આવશે. વિવિધ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે ખાસ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ જ્યારે ઉપસ્થિત થયા છે ત્યારે ખાસ ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત પણ રાખવામાં આવ્યો છે. રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસની ઉજવણીમાં કેવડિયા ખાતે
એકતા પરેડમાં ખાસ 6 જેટલા પ્લાટૂનો જોડાનાર છે, જેમાં દેશમાં તમામ રાજ્યોના જે કેન્દ્રીય પોલીસ દળો છે એના પ્રતીક સ્વરૂપે 54 જેટલા ફ્લેગ છે, બેરર છે, બીએસએફ। जी धनराज, आभार आपनो आ समग्र माहिती बदल। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, सरदार साहब की सबसे ऊंची प्रतिमा पर पहुंचकर उन्होंने उनके चरणों में वंदन किया, उनको पुष्पांजलि अर्पित की, उनको श्रद्धांजलि दी, उनको शत शत नमन किया। और इस कार्यक्रम में आपने देखा कि किस तरह से हेलीकॉप्टर्स के द्वारा पुष्प वर्षा की गई और पूरे देश भर में सरदार साहब को नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी जन्म जयंती पर उनको याद करते हुए, उनसे प्रेरणा पाते हुए आज पूरे देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। नई दिल्ली के पटेल चौक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शत शत नमन किया, अभिनंदन किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए देश के इस महान शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और अब ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं केवड़िया गुजरात से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के पहले गृह मंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद अब वो एक दूसरे कार्यक्रम में, जिसमें राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन किया जाएगा, इसमें देश भर के पुलिसकर्मी, तमाम राज्यों के पुलिसकर्मी हिस्सा लेंगे। देखिए किस तरह से एक कतार में, एक वर्दी में पंक्तिबद्ध होकर के हमारे जो रणबांकुरे हैं, हमारे पुलिस के जवान हैं, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं, वो सब यहाँ पर इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस कार्यक्रम के लिए देश भर के तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस के जवान हैं, उन्होंने साइकिल रेस से लेकर के मोटरसाइकिल रैली तक का आयोजन किया। और इस राष्ट्रीय एकता दिवस का जो संदेश है, उसका प्रसार देश के कोने कोने में करने की जो अगुवाई की है, वो निश्चित तौर पर प्रशंसनीय है। और ऐसे सभी लोग इससे जुड़े हुए जो वो हैं, वो प्रशंसा के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का काफिला अब वापस दूसरे कार्यक्रम की ओर बढ़ता हुआ यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी पर उन्होंने सरदार साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और उसके बाद वो राष्ट्रीय एकता परेड में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं, जो कि इसके निकट ही स्थित है। इस राष्ट्रीय एकता परेड में देश भर के पुलिसकर्मी हिस्सा लेंगे, जो अर्धसैनिक बल हैं उनके जवान हिस्सा लेंगे, तमाम राज्य हैं वहां से पुलिसकर्मी इसमें हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे में ये भी जो एक तरह से जिसको एकता में की बात हम जब कर रहे हैं, अनेकता में एकता की बात कर रहे हैं, तो देश के कोने कोने से तमाम पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे हैं। ये जो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से सरदार साहब की प्रतिछाया में ये जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह से उनकी मूर्ति, उनकी प्रस्तर मूर्ति जीवंत होकर के हम सबको प्रेरित कर रही है। और जब देश में एकता की बात होती है, अखंडता की बात होती है, अक्षुण्णता की बात होती है, उसको कायम रखने की बात होती है, तो हम सब देशवासियों का कर्तव्य तो आता ही है, लेकिन सबसे जो कर्तव्य परायण जो कर्मी हैं, वो हमारे शूरवीर, हमारे पराक्रमी अर्धसैनिक बल और हमारे पुलिस के जवान हैं, जो तमाम झंझावातों में, जो तमाम मुश्किलों में, जो तमाम तरह की कठिनाई का सामना करने के बावजूद देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जी जान से जुटे रहते हैं। देश के कोने कोने में इनकी जो कर्तव्य परायणता है, जो इनकी बहादुरी है, उसकी मिसाल हम सबको मिलती रहती है। और ऐसे ही कर्तव्य परायण सेना के, अर्धसैनिक बलों के और पुलिस दल के, तमाम राज्यों के पुलिस दल के जो जवान हैं, वो आज यहाँ इस राष्ट्रीय एकता परेड में एकत्रित हुए हैं। इस परेड की झलकियां पाने के लिए तमाम सारे लोग इसका इंतजार कर रहे थे कि किस तरह से ये परेड, इसकी शुरुआत होगी। और मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही इस कार्यक्रम की शुरुआत हो सकेगी। तो केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन हो चुका है।
प्रधान बनेंगे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत के माननीय गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी। यूनियन वेलफेयर के द्वारा माननीय अतिथि महोदय का स्वागत किया जाएगा। देश प्रेम के रंगों में सराबोर यह स्थल, जहां पूरे देश में एकता की भावना को अमरत्व देने वाली विश्व की सबसे ऊंची प्रतिभा, भारत की एकता अखंडता के प्रेरक पूज्य सरदार के विचारों को जिन्होंने आत्मसात कर भारत की सेवा और सुरक्षा के लिए जो सदैव कटिबद्ध हैं, वैसे माननीय गृह मंत्री महोदय यहां पर पधार रहे हैं। मां भारती की सुरक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध और समर्पित ऐसा एक अविचल व्यक्तित्व यानी भारत देश के माननीय गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर यहां पधार चुके हैं। सहृदय स्वागत अभिनंदन है माननीय गृह मंत्री महोदय श्री अमित शाह जी का आज इस मंच पर। आज राष्ट्रीय एकता दिवस का ये पावन अवसर, इस समारोह में राज्य पुलिस, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, केंद्रीय पुलिस संगठन एवं यूनियन टेरिटरीज का ध्वजवाहक दस्ता यहाँ पर आ चुका है और ये अनुभूति दे रहा है कि हम एक हैं, हम साथ हैं, हम अखंड हैं। देश की एकता के प्रति अपनी निष्ठा दर्शाते हुए कदम से कदम मिलाकर शान से आगे बढ़ता यह ध्वजवाहक दस्ता, जिसमें 29 राज्यों से 8 यूनियन टेरिटरीज, 17 केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं केंद्रीय पुलिस संगठन के 54 ध्वज शामिल हैं। इन 54 ध्वज वाहकों के हाथों में लहराते यह प्रत्येक ध्वज अपने आप में अनेकों वीर गाथाओं को समेटे हुए देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखने हेतु संकल्पित है। उपस्थित सभी से निवेदन है, राष्ट्रध्वज के आगमन पर राष्ट्रध्वज के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, वर्दीधारी सैल्यूट करें।
को सम्मान देंगे। राष्ट्रीय सैल्यूट। राष्ट्रीय एकता को कायम कर पूज्य सरदार ने भारत के सुनहरे भविष्य का सपना देखा था। आज इस दिवस पर हमारे साथ मंच के समक्ष दाहिनी और बाईं ओर भारत का भविष्य उत्साह से जुड़ा है, यानी बच्चे भी आज राष्ट्रीय एकता परेड का हिस्सा बने हैं। तो माननीय गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं वे उपस्थित सभी के साथ पूरे भारत देश को एकता की शपथ दिलवाएं। उपस्थित सभी अपने स्थान पर खड़े होकर दाहिना हाथ आगे करके शपथ ग्रहण करें। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने की भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। संकल्प करता हूं। हमारे संविधान एवं
देश की आंतरिक सुरक्षा के प्रति कटिबद्ध यह ध्वज वर्षों की सेवा, शौर्य, कर्तव्य निष्ठा, पराक्रम एवं शहादत व श्रेष्ठता और गर्व का प्रतीक चिन्ह भी है। किसी भी तरह की आफत या महामारी देश के प्रति हमारी निष्ठा और हौसलों को डिगा नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे जाबाज जवान सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति एवं दूरदर्शिता से प्रेरित होकर अपने देश के प्रति समर्पित है और आज राष्ट्रीय एकता परेड के अवसर पर अपने शौर्य प्रदर्शन एवं परेड की संक्षिप्त प्रस्तुति करेंगे। नंबर 1 कंपनी आगे, दाहिने चलेगी, दाहिने और अब पूज्य सरदार की अप्रतिम प्रतिमा के चरणों के समीप मां भारती के जाबाज सिपाही देश के प्रति अपने जुनून, शौर्य और अनुशासन से देश के प्रति अपना राष्ट्रभाव प्रदर्शित करेंगे। इस परेड के जरिए अखंड भारत का संदेश देती ये परेड अब मंच की ओर कौर कबड्डी में सिल्वर मेडल, श्री सरदार सिंह पद्मश्री से सम्मानित हॉकी खिलाड़ी जिन्होंने कई पदक हासिल किए हैं, सूर्य भानु प्रताप सिंह विश्व खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल एवं एन उषा रानी कबड्डी में सिल्वर मेडल। और अब आ रहे हैं एशियाई पदक विजेता जिसमें है अजय ठाकुर कबड्डी ब्रॉन्ज मेडल, प्रियंका नेगी कबड्डी सिल्वर मेडल, टी सीताराम सेपक टाकरो ब्रॉन्ज मेडल, डब्ल्यू संजय सिंह सेपक टाकरो में ब्रॉन्ज मेडल, शालिनी पाठक कबड्डी में सिल्वर मेडल, मनप्रीत कौर कबड्डी में सिल्वर मेडल, जी जित शौर सेपक टाकरो में ब्रॉन्ज मेडल एवं वाई आकाश सिंह सेपक टाकरो में। और अब एशियाई पदक विजेता जो कि सभी खिलाड़ी सेपक टाकरो में कांस्य पदक विजेता हैं, जिसमें है एसएमसी एनजी ज्योतिन सिंह, श्री धीरज एंड श्री डब्ल्यू हेनरी सिंह। और अब आ रहे हैं मोटरसाइकिल रैली के ये सवार जिसमें सबसे पहले है गुजरात पुलिस के 26 जवान। भारत की पश्चिम सीमा यानी लखपत कच्छ से 1170 किलोमीटर का अंतर तय कर गुजरात में स्थित पूज्य सरदार की इस कर्मस्थली पर, जिनके कमांडर है इंस्पेक्टर बीके जोशी। और अब आ रहे हैं मां भारती के सरताज यानी उत्तर सीमा जम्मू कश्मीर के कमांड पोस्ट उरी से ये जाबाज जम्मू कश्मीर के पुलिस जवान जो कि पीर पंजाल की दुर्गम पहाड़ियों को पार करते हुए श्रीनगर, पंजाब, दिल्ली जैसे कई इलाकों से 2536 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके मोटरसाइकिल पर यहाँ उपस्थित है। जम्मू कश्मीर पुलिस एवं मां भारती का ये तिरंगा लहराकर बड़े ही गर्व से हर एक राज्यों में जिनका स्वागत हुआ, जिनके कमांडर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बलवान सिंह। और अब मां भारती के चरणों को पखालते दक्षिण छोर यानी कन्याकुमारी से अपने सफर की शुरुआत कर 2091 किलोमीटर की दूरी को निभाकर कई दक्षिणी राज्यों से एकता का संदेश यहां पर लेकर आए हैं तमिलनाडु पुलिस के ये मोटरसाइकिल सवार, जिनकी कमान संभाले हुए हैं इंस्पेक्टर सेल्वा दुराई। जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे इन सभी मोटरसाइकिल रैली के प्रतिभागियों की। और अब पूर्वी छोर से अपने सफर की शुरुआत कर साउथ त्रिपुरा सबरूम से सबसे लंबा सफर यानी 3118 किलोमीटर का ये सफर तय करके आज इस एकता परेड में शामिल है त्रिपुरा पुलिस के ये जवान। त्रिपुरा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश होके गुजरात में ये पधारे हैं त्रिपुरा पुलिस, जिनका नेतृत्व कर रहे हैं नायब सूबेदार प्रांजित देव वर्मा। मोटरसाइकिल रैली के ये थे प्रतिभागी। तालियों के गर्जन से हम स्वागत करते हैं इन सभी का। इस साल हिंदुस्तान मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव यानी 75 वर्ष आजादी के। इसी के चलते देश भर में हो रहे विविध आयोजनों में से एक केंद्रीय सशस्त्र बलों के द्वारा हो रही साइकिल रैली देश के अलग अलग तैनाती स्थलों से शुरू कर तकरीबन 91 जिलों से आजादी के अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए
75 साइकिल सवार आज यहाँ इस राष्ट्रीय एकता परेड में, जिसमें सबसे पहली टीम है बीएसएफ के जवानों। जैसलमेर राजस्थान के गर्म रेगिस्तान से शुरू कर 723 किलोमीटर का ये सफर तय किया बीएसएफ के जवानों ने संदीप राजपूत सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में। अब दूसरे हैं सीआईएसएफ के ये साइकिल सवार, अपने तैनाती स्थल त्रिवेंद्रम से चले हैं साइकिल पे 2042 किलोमीटर की दूरी को तय कर। आज 5 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज के यहाँ पर सब इंस्पेक्टर राकेश बिश्नोई है जिसके कमांडर। और अगली टीम है सीआरपीएफ के जवानों की, जो कि नक्सली इलाकों में तैनात है। वे गढ़चिरौली महाराष्ट्र से रैली की शुरुआत करते हुए 1000 किलोमीटर की दूरी को तय कर यहाँ उपस्थित है सहायक कमांडेंट चेतन शेलोतकर के नेतृत्व में। तालियों से हम स्वागत करेंगे इन सभी का, इतने दूर से ये सफर तय करके आज इस राष्ट्रीय एकता परेड का हिस्सा बने हैं। अब आ रही है टीम आईटीबीपी के पुलिस कर्मियों की, जो कि भारत चीन की सीमा गोगरा हॉट स्प्रिंग से 27 अगस्त को शुरू किया। 70,000 फीट से भी ऊपर 3 पहाड़ी दरों को पार करते हुए सबसे ज्यादा तकरीबन 2800 किलोमीटर की यात्रा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान से होकर केवड़िया के स्थल पर पहुंचे हैं सहायक कमांडेंट अधीश गुप्ता के नेतृत्व में। और अब साइकिल रैली में एसएसबी के जवानों की ये टीम, जो भी 2347 किलोमीटर का सफर तय कर जयगांव पश्चिम बंगाल से यहाँ आए हैं, यानी पूर्व भारत से इन्होंने जोड़ा है इस पश्चिम भारत को। 5 राज्यों के 26 जिलों के जनमानस तक पहुंचाया एकता के संदेश को सहायक कमांडेंट सुजीत कुमार के नेतृत्व में। दूर सुदूर गांव से, भारत की सुदूर सीमाओं से यहाँ पर आए हैं ये सैनिक मोटरसाइकिल एवं साइकिल रैली के स्वरूप में। बहुत बहुत अभिवादन है आप सभी का। सलामी देंगे जनरल सलाम लम्बे सक अब सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वीरों के द्वारा एक स्पेशल डेमोन्स्ट्रेशन वुशु मार्शल आर्ट का। वुशु जो कि एक फुल कांटेक्ट खेल है और मार्शल आर्ट के इस खेल वुशु, जिसमें वुशु का मतलब है सैन्य कला। वुशु जो खेलों में से एक है जिसे सशस्त्र सीमा बल ने फिट इंडिया मूवमेंट योजना के हेतु उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया है। एसएसबी में वुशु के 50 खिलाड़ी हैं, जिसमें 24 महिलाएं। उन्होंने वुशु प्रतियोगिताओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 16 और राष्ट्रीय स्तर पर 54 पदक जीते हैं। आज के इस प्रदर्शन में 21 लोगों का दल है, जिसमें 6 महिलाएं एवं 15 पुरुष हैं। तो प्रस्तुत है एसएसबी के जवानों के द्वारा वुशु मार्शल आर्ट।
आईटीबीपी के हिमवीर राष्ट्रीय एकता दिवस अवसर पर आपके समक्ष प्रदर्शन करेंगे लाइट कॉम्बैट व्हीकल प्रदर्शन, जिसमें वाहन के अलग अलग हिस्सों को बहुत ही कम समय में आईटीबीपी के जांबाजों द्वारा खोलकर व जोड़कर वाहन को तैयार किया जाएगा। आईटीबीपी के सैनिक दुर्गम दूर दराज रास्तों में वाहन से अपने कर्तव्य निर्वहन हेतु जाते हैं तो रास्ते में अचानक सामने कई बाधाएं अवरोध आ जाते हैं, जैसे लैंडस्लाइड, ग्लेशियर, पहाड़ों को टूटने से, मार्ग में बड़े बड़े पत्थर, पेड़ों के गिर जाने से मार्ग अवरोध हो जाते हैं। किंतु आईटीबीपी के जवान अपने कार्य को रुकने नहीं देते। ऐसी परिस्थिति में वाहन को खोलकर बाधा को पार करके वाहन के हिस्सों को जोड़कर जाबाजी से अपने कार्य को अंजाम देते हैं। आईटीबीपी की अधिकतर तैनाती पहाड़ी क्षेत्रों के साथ अति दुर्गम क्षेत्र में है, जहां पर मौसम की विषम परिस्थितियों एवं अन्य कारणों से कई बार बॉर्डर आउटपोस्ट देश की मुख्य धारा से कटी रहती है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, आईटीबीपी के वाहनों को हर समय हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना अति आवश्यक है। आईटीबीपी के द्वारा किसी भी परिस्थिति में ऑपरेशनल मूवमेंट को रोका नहीं जाता। वाहन को विषम परिस्थिति में खोलकर ट्रांसमिट करके या एयरलिफ्ट करके जोड़ा जाता है तथा वाहन के आगे की प्रत्येक कार्यवाही को जारी रखकर प्रत्येक ऑपरेशनल कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाता है। इस प्रकार की कार्यवाही को लेह में दौलत बेग ओल्डी चौकी, उत्तराखंड में लपतल व काला पानी चौकी और अरुणाचल प्रदेश की अग्रिम चौकी में सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। इसके अतिरिक्त समय समय पर आने वाली आपदा प्रबंधन के दौरान भी आईटीबीपी के सैनिकों द्वारा ऑपरेशनल मूवमेंट की कार्यवाही को तेज गति के साथ कुशलता से पूर्ण किया जाता है। इस वाहन का कुल भार 956 किलोग्राम है। इस वाहन के 3 मुख्य भाग हैं: इंजन, बॉडी व चेसिस फ्रेम, जिनको आईटीबीपी हिमवीरों द्वारा क्रमबद्ध तरीके से अलग किया गया व वाहन के हिस्सों को जोड़ने की कार्यवाही आपके सामने प्रदर्शित की जा रही है। सर्वप्रथम शकल पिन खोलकर फ्रंट एक्सल व रियर एक्सल, जिनमें फ्रंट एक्सल का वजन लगभग 135 किलोग्राम है व रियर एक्सल का वजन लगभग 125 किलोग्राम है, को वाहन के चेसिस फ्रेम, जिसका वजन लगभग 120 किलोग्राम है, के साथ जोड़ा जा रहा है। वाहन के इंजन तथा गियर बॉक्स, जिसका भार लगभग 140 किलोग्राम है, को आईटीबीपी के जवानों द्वारा चुस्ती से वाहन में फिट किया जा रहा है। माननीय महोदय, यह प्रदर्शन यहाँ पर सामान्य परिस्थिति में प्रदर्शित किया जा रहा है, जबकि आईटीबीपी की तैनाती अति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, जहाँ पर तापमान अत्यधिक कम -40 डिग्री, बर्फबारी, ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, पुल व सड़कों का टूट जाना जैसी कठिनतम परिस्थितियों में भी बिना देरी के हर मिशन को पूर्ण किया जाता है। वाहन के हिस्सों को जोड़ने के क्रम में वाहन के बॉडी फ्रेम को जोड़ा जाएगा, जिसका भार लगभग 250 किलोग्राम है। हाल ही में किन्नौर में आई भूस्खलन विपदा के समय आईटीबीपी के वाहनों द्वारा यथासंभव सहायता की गई। विषम परिस्थितियां हिमवीरों को रोक नहीं पाई। एक चुनौतीपूर्ण तकनीकी कार्य, जिसे आईटीबीपी के सैनिक हौसलों के साथ बेहतरीन तरीके से वाहन के हिस्सों को खोलने के उपरांत जोड़ने की कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम देते हुए आईटीबीपी यानी बहादुरी और निष्ठापूर्ण प्रतिबद्धता, शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा के प्रतिरूप ये हिमवीर सैनिक संकल्प की टंकार हम
रणभूमि की ललकार हम, निर्भीक हम, अजय हम, हिमवीर स्वाभिमानी, हम सरहद के सेनानी, हम सच्चे हिंदुस्तानी। बेहतरीन प्रदर्शन, और ये प्रदर्शन आईटीबीपी के हिमवीरों ने 4 मिनट 31 सेकंड में पूर्ण किया। जोरदार तालियों की गुजारिश आईटीबीपी के इन हिमवीरों के नाम। हिंदुस्तान की एकता एवं श्रेष्ठता के लिए पूज्य सरदार के विचारों और उनकी निष्ठा को भारत की आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाकर उन्हें जागरूक करना हमारा कर्तव्य है और फर्ज भी, जिसके चलते हमारे भविष्य समान बच्चों को राष्ट्रीय एकता दिवस में शामिल करने हेतु बैंड कौशल स्पर्धा का आयोजन गुजरात सरकार के तहत प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा किया गया, जिसमें पूरे राज्य जिला कक्षा से 37 शालाओं के स्कूल बैंड्स ने हिस्सा लिया और उनमें से सेट लेवल पे विजेता बनी 2 टीम जो छात्रों की और छात्राओं की है, जिसमें सबसे पहले परफॉर्म करेंगी विनर गर्ल्स टीम जो है वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद के नरोडा की सेंट मैरी स्कूल से 10 से 12 साल की ये छोटी सी बेटियां, जिसका नेतृत्व कर रही है प्रियांशी यादव। 8वीं कक्षा की ये छोटी सी बेटी, ये छात्रा जो 25 छात्राओं की ये टीम सेंट मैरी स्कूल नरोडा अहमदाबाद जो प्रस्तुत करेंगे अपना बैंड निदर्शन। तालियों के गर्जन से हम इन बच्चों की हौसला अफजाई करेंगे। सेंट मैरी स्कूल नरोडा अहमदाबाद की ये है बेटियां। बहुत ही खूब प्रस्तुति इन बच्चों के द्वारा। सेंट जेवियर स्कूल जामनगर की ये थी विजेता टीम। सारे जहां से अच्छा की धुन इस बैंड से और दिल में जज्बा अपने देश के लिए, यही देश प्रेम की भावना और हमारे भविष्य के समान इन बच्चों के दिलों में जगे और एक रहने का बीड़ा वे भी उठाए, यही मकसद था
आज के इस शानदार परफॉर्मेंस का। और अब इस समारोह में होने जा रही है एक ऐसी प्रस्तुति जिसमें प्रस्तुति के साथ साथ प्रस्तुत करने वाले कलाकार भी हम सभी के लिए अनूठे हैं, क्योंकि मेहनत ही जिनका हथियार है, मेहनत ही जिनका गहना है और मेहनत ही जिनका ज़मीर है। ये है ऐसे कुछ श्रम योगी कलाकार प्रिंस डांस ग्रुप गंजम उड़ीसा से। दिन भर छोटे मोटे काम करके अपने जीवन का निर्वाहन करने वाले इन श्रमिकों में भी छुपी है कई प्रतिभाएं, और उनकी इस प्रतिभा को, इस अनदेखी प्रतिभा को छानकर उन्हें विश्व के फलक पर आगे लाने का बीड़ा उठाया श्री कृष्णा रेड्डी जी ने। प्रिंस ग्रुप के मुखिया श्री कृष्णा रेड्डी, जो कि श्रमिक कलाकारों को अर्जित आय से बच्चों की पढ़ाई तथा अन्य सहायता भी करते हैं, ऐसे श्रमिकों की कला को उजागर कर उनकी सेवा करने का श्री कृष्णा रेड्डी जी का ये जज्बा रंग लाया और 2004 से अब तक के इस सफर में पाई कई सफलताएं। 2009 में इंडियाज गॉट टैलेंट में वे बने विजेता और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वे छा गए। आज प्रिंस डांस ग्रुप के द्वारा ये खास परफॉर्मेंस, जिसमें सबसे पहले होगी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई, उसके बाद आजादी के उत्सव की खुशी एवं एकता के लिए पूज्य सरदार के योगदान को सम्मिलित किया जाएगा। भारत के असंख्य लोगों को ब्रिटिश राज के निर्मम शासन से लड़ने की ताकत थी। वंदे मातरम। देश केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं, जीवन की जननी, जीवन संरक्षणी, सुख देने वाली वरदायिनी माँ है। उसी माँ को नमन है। वंदे मातरम। जागे हैं अब सारे लोग देख वतन, तुझे है नारों से अब ये जमीन और ये गगन। कल तक में तन्हा पर अब है साथ मेरे लाखों दिलों की धड़कन। देख वतन कोटि कोटि मनुष्यों का पोषण करने वाली माँ अबला कैसे हो सकती है? अपने बच्चों की ताकत वही, विश्वास वही, आधारभूत वही, आत्म बिंदु भी वही। उसी माँ को नमन है। वंदे मातरम। सुबह सवेरे पंख बखेरू तेरे ही गुण गाए, वास भरी भरपूर हवाएं जीवन में रुत लाए। सब मिलकर हिंद पुकारे, जय आजाद हिंद के नारे। प्यारा देश हमारा
मन में केवल वंदे मातरम की सशक्त प्रेरणा को लिए अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने जीवन का बलिदान दिया। वह जूझते रहे जब तक सदियों से अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ी हुई मां आजाद नहीं हुई। और फिर आजादी। वंदे पर ये क्या, मां का आंचल स्वतंत्र लहराता क्यों नहीं? मां के आंगन में कोलाहल और कोहराम मचा हुआ है। सब बच्चे इधर उधर बिखर रहे हैं, मां के लिए ही लड़ रहे हैं। ये कैसी खींचतान है, ये कैसी विडंबना है। बस अब और नहीं, मां की विडंबना को दूर करना ही होगा। मां के लौह पुत्र सरदार ने हुंकार।
माँ सबकी है, सब माँ के हैं। माँ का आंचल सबके लिए है, उसकी गोद को बांटना नहीं, उसके आंचल को काटना नहीं। वंदे मातरम। गंजम उड़ीसा के ये श्रमयोगी कलाकार ये शानदार प्रस्तुति और एकता का संदेश, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता संग्राम के भारत रत्नों की जन्मभूमि यानी गुजरात, जो सदियों से अपनी कला, संस्कृति एवं साहित्य से भी जानी गई है। देश प्रेम में सराबोर आज के इस समारोह में अब कुछ रंग गुजरात की कला और संस्कृति से भी। आजादी के बाद छोटे से पौधे की तरह पनपता हमारा देश आज एक विशाल वट वृक्ष बना है और इस वृक्ष से हमने पाए हैं कई विकासशीलता के फल। राष्ट्र की उन्नति, प्रगति की बात अपने पारंपरिक नृत्य से यहाँ प्रस्तुत करेंगे गुजरात के कलाकार। आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर राष्ट्र की श्रेष्ठता की बात लेकर आए हैं गुजरात के ये विशेष कलाकार। वृक्षं शरणं गच्छामि। अपने आसपास देखो कैसे वृक्षों का वैभव है। कोई घटादार, कोई पीले पर्णों के साथ, कोई मौन, कोई बोलते। धूप की तपिश में खिले गुलमोहर, शीतल छाव देने वाला वटवृक्ष, जिसकी सुगंध में स्वास्थ्य का संदेश, वह नीम का पेड़। वृक्ष में पीपल हूं, ऐसा श्री कृष्ण ने प्यार से कहा था। वो पारस पीपल, सदैव वसंत से खिलता आम का वृक्ष। नवेन्दु सिंधु शुष्कलतरंग भंग रंजितम विशत्सु पापजान रे होड़ा मत में जाम शोके याद नहीं। मौज खेली परवारण रे होड़ा मत में जाम शोके आज नहीं। घिला घिला बरवाडो रात आखी रमशो में उड़े ते दादा दी। घिला घिला बरवाडो नाची नाची रमशो में उड़े ते दादा दी। मौज खेले भरवाड़न रे होड़ा मत में ए जाम शोके नहीं। मौज खेली भरवाड़न रे होड़ा मत में जाम शोके आज नहीं। अंतरिक्ष में छलांग और इसरो की स्थापना। मवेशियों के दूध के लिए आई श्वेत क्रांति। आर्यभट्ट उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाने वाला यान। अंतरिक्ष में पहला कदम रखते हुए राकेश शर्मा ने बढ़ाई देश की शान। फिर सुनीता पंड्या ने भी, और पीटी उषा की मैराथन से जयकारे लग गए। पोखरण में अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर परमाणु प्रयोग तक, पहले से वर्तमान तक की यात्रा। इस यात्रा में कई प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ है 1947 से 2021 तक। पर वर्तमान का मिजाज अनोखा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारत आत्मनिर्भर हुआ और अपनी पहली जीपीएस प्रणाली की शुरुआत हुई। एक ही टैक्स स्ट्रक्चर जीएसटी से पूरा देश एकजुट था। पिंजर बंद महिलाओं के उद्धार के लिए ट्रिपल तलाक को नाबूद किया गया। एकता और अखंडता हमारा जीवन मंत्र है। धारा 370 को हटाकर सच्ची भारतीय एकता की आवाज कश्मीर में सुनाई दी। 2019 की महामारी में दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश, यह दुनिया में सबसे कम कोरोना केस वाला देश बना। हवाई हमले से लेकर आतंक का चारों ओर से सामना किया गया। हमने चीन से भी कहा, तुम चीन हो तो हम प्राचीन। करमसद और नडियाद के वृक्षों के साथ जीने वाले सरदार साहब एक सच्चे किसान भी थे। फिर वो बन गए भारतवर्ष के एकता की सूत्रधार। महान भारत, गौरवशाली भारत,
सिर्फ एक वृक्ष नहीं, मैं बोलता हूँ भारत की हरियाली आत्मा, जिसके मूल धरती में है, पंख आपके साथ और आंख आकाश में। इसलिए आज इस राष्ट्रीय एकता दिवस का एक अनूठा महत्व है। मित्रों, आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है। मैं पूरे देश में करोड़ों देशवासी जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, इस सबको बताना चाहता हूं, सदियों में कभी कोई एक ही सरदार बन पाता है, और जब सदियों में कभी कोई एक सरदार बन पाता है, वो एक सरदार सदियों तक अलग जगाता है। आज हमारे सामने सरदार साहब नहीं है, मगर परेड करते हुए जवान सांस्कृतिक कार्यक्रम रजू करते हुए हमारे बच्चों के चेहरे पर जो भाव था, वो सरदार पटेल का ही भाव था। सरदार साहब की दी हुई प्रेरणा ने ही आज इस देश को एक और अक्षुण्ण रखने का काम किया है, और आज उनकी प्रेरणा देश को आगे ले जाने के लिए हमें एकजुट रखने में सफल हुई है। मित्रों, ये केवड़िया कोई एक जगह का नाम नहीं है, एक तीर्थ स्थान बन गया है, राष्ट्रीय एकात्मता का तीर्थ स्थान, राष्ट्र धर्म का तीर्थ स्थान, देशभक्ति का तीर्थ स्थल, और आज ये आसमान को छूने वाली सरदार साहब की मूर्ति पूरी दुनिया को संदेश दे रही है कि भारत का भविष्य उज्जवल है। भारत की एकता और अखंडता को कोई क्षत विक्षत नहीं कर सकता। ये संदेश जो सरदार साहब ने दिया है, आज केवड़िया इसका दुनिया के सामने उद्घोषणा करता है। मित्रों, आज मैं आप सभी को ये कहने आया हूं कि सरदार साहब, उनका जीवन हम सब के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए विशेषकर बहुत प्रेरणादायी। सरदार साहब ने एक गरीब किसान के घर में जन्म लेने के बाद बैरिस्टर तक की पढ़ाई कर अपनी कैरियर छोड़कर गांधी जी के आह्वान पर आजादी के आंदोलन में जुड़े, और जब देश आजाद हुआ, मैंने पहले कहा, ऐसे अनेक प्रकार के संकट देश के सामने छोड़कर गए अंग्रेज। एक और विभाजन का संकट था, एक और नई शासन प्रणाली को बनाने का सवाल था, एक और नया संविधान बनना था, और सबसे बड़ा संकट था 500 से ज्यादा रियासतों का भारत संघ में समावेश करना। मित्रों, सरदार साहब ने निर्बल होती हुई सेहत के रहते भी ये काम देखते 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 समाप्त कर दिया, और जो लोग सोचते थे आजाद भारत खंड खंड बिखर जाएगा, उनके सारे इरादों पर पानी फेरते हुए एक अखंड भारत का निर्माण हमारे सरदार पटेल ने किया था। एक जमाने में आचार्य चाणक्य ने देश को एकजुट किया था, उसकी सदियों के बाद सरदार पटेल ने देश को एकजुट करने का काम किया, और इसी का प्रतिफल है कि आज देश गर्व के साथ विश्व के अंदर अपना स्थान मजबूत कर रहा है। सरदार का जीवन, उनका व्यक्तित्व, उनकी कृति हम सबको सदैव प्रेरणा और मार्गदर्शन देती है। सरदार साहब ही थे जिन्होंने आजादी के आंदोलन में किसानों की आवाज बुलंद की, सहकारिता की नींव डाली, और अंग्रेजों के सामने जो आजादी का आंदोलन चलता था, उसका व्यवहारिक पक्ष, जिस नीतियों का पैर जमीन पर हो, इस प्रकार का व्यवहारिक पक्ष का नेतृत्व हमेशा सरदार पटेल ने दिया। और इसीलिए हरिवंश राय बच्चन ने सरदार पटेल के लिए एक कविता लिखी थी, पटेल देश के निगहबान है और पटेल देश की निडर जबान है। किसी भी बात को बेकाब तरीके से रखना, और वो जरा भी झिझकते नहीं थे। और इसलिए आज जब भारत माता का एक अखंड स्वरूप देख रहे हैं, वो
केवल और केवल सरदार साहब के कर्म का ही नतीजा है, उनके दृष्टि का ही नतीजा है। मित्रों, जब सारे राजे रजवाड़ों को भारतीय संघ में विलय करना था, तब सरदार साहब की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। सरदार साहब की बेटी ने अपने डायरी के अंदर, जो उनकी निजी सचिव भी थी, लिखा है सुबह 5 बजे मीटिंग शुरू होती थी, रात को 11 बजे तक सबको मिलना चालू रहता था। मित्रों, हम सब जानते हैं इतिहास को। जाम साहब के नेतृत्व में काठियावाड़ के साथ स्टेट हो, त्रावणकोर हो, भोपाल हो, हैदराबाद का पुलिस एक्शन हो, ये सब के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों को भारत के साथ जोड़ने का काम सरदार पटेल ने किया था। मगर एक हिस्सा जो उन्होंने इस भारत का बनाया, इसके प्रति किसी का ध्यान नहीं है। लक्षद्वीप आजादी जिस दिन मिली, 15 अगस्त को, उसी दिन सरदार पटेल ने हमारे लड़ाकू जहाज तीर को लक्षद्वीप पर भेज दिया था। और तीर ने वहां जाकर हमारी नौसेना ने जब वहां तिरंगा फहराया, उसके कुछ घंटे के बाद ही पाकिस्तान का जहाज भी वहां पहुंचा था। मगर उसके पहले लक्षद्वीप पर भारत का झंडा फहर चुका था और इसके कारण आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा है। ढेर सारा समुद्री किनारा वहीं से हमारा सुरक्षित होता है। मित्रों, सरदार साहब ने जिस प्रकार से आजादी के बाद भारत को एक करने का काम किया, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरदार साहब को भुलाने का प्रयास किया गया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला। मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया। मगर कहते हैं कि सूर्य को कितनी देर बादल ढक कर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला, आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पूरी दुनिया को संदेश है कि भारत की एकता को कोई तोड़ नहीं सकता, भारत की अखंडता को कोई विकसित कर नहीं सकता और भारत के सार्वभौमत्व को भी इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। इसका प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से इस प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 2 गुनी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जब निर्धार अभी के हमारे प्रधानमंत्री और उस वक्त के गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई ने किया था, तब उन्होंने कहा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार साहब के काम करने के तरीकों के अनुरूप होना चाहिए। पूरा जीवन उन्होंने किसानों की आवाज बुलंद करने के लिए लगाया। अंग्रेजों के खिलाफ कई सारे किसानों के अधिकार के सत्याग्रह के आंदोलन किए। बारडोली सत्याग्रह के कारण ही उनको सरदार का उपमा मिला था। देश भर के किसानों के कृषि में उपयोग हुए औजारों का लोहा इकट्ठा कर कर नरेंद्र भाई ने कल्पना की कि सरदार साहब की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई जाए और इस मूर्ति में जो लोहा है, ये देश भर के करोड़ों किसान भाइयों के हल का या किसी कृषि औजार का पिघला कर बनाया गया लोहा आज एक सरदार साहब का स्टैच्यू बनकर यहाँ पर खड़ा है। मैं मानता हूं ये सरदार साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। 135 मीटर ऊंचाई पर एक दर्शक दीर्घा है जिसमें लगभग 200 लोग ये विहंगम दृश्य को देख सकते हैं। वहां से सरदार सरोवर डैम, सापुतारा और विंध्याचल की खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं को भी हम देख सकते हैं। ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण केवल और केवल 46 महीनों में किया गया है, 46 मंथ। इतना बड़ा स्ट्रक्चर सिर्फ 46 महीनों में किया गया। 70,000 मैट्रिक टन सीमेंट का उपयोग हुआ है, 6,000 मैट्रिक टन
स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 मीट्रिक टन रीइंफोर्समेंट बार का इस्तेमाल किया गया है। मित्रों, इसके अंगूठे की ऊंचाई 3.6 मीटर है और सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर के एक खूबसूरत स्थान पर इसको बनाया गया है। मैं इसका वर्णन देश के युवाओं के लिए इसलिए करता हूं कि ये जो हमारी देश की एकता का तीर्थ स्थल है, इसका आप एक बार जरूर विजिट करिए। यहाँ से जो चेतना और ऊर्जा प्राप्त होगी वो आप सभी को आने वाले जीवन में देश के लिए काम करने की प्रेरणा लेगी। मित्रों, 30 महीने के भीतर, इसके उद्घाटन के 30 महीने के भीतर 50 लाख से अधिक पर्यटकों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन किए हैं और 1 साल से भी अधिक समय में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के फुटफॉल को पार कर दिया है। आज यहाँ पर हर रोज 15,000 से ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और ढेर सारे लोग यहाँ पर आकर सरदार साहब को श्रद्धांजलि देते हैं। मैं मानता हूं कि ये स्थल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि का नतीजा है और यहाँ से ही आने वाली पीढ़ियां देश को एक और अखंड रखने की प्रेरणा लेकर जाती हैं। मित्रों, जब भारत में 2014 में बदलाव हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता रूप में मनाने का निर्णय किया गया और इसलिए किया गया कि सालों तक आजादी के लिए सरदार पटेल ने जो संघर्ष किया वो सालों तक हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे। देश को एक और अखंडित करने के लिए आजादी के बाद उन्होंने जो प्रयास किया वो वर्षों तक देश की युवा पीढ़ी को प्रेरणा कर देता रहे और ये जन सहयोग से बनी हुई ये मूर्ति, ये इसका प्रतीक है कि आने वाली पीढ़ियों को किस प्रकार से सरदार से प्रेरणा लेकर आगे जाना है। हमारी एकता को प्रदर्शित करते हुए रन फॉर यूनिटी भी उसी दिन शुरू होती है। सुबह एकता के लिए सभी लोग राष्ट्रीय एकता दौड़ के अंदर अपने आप को सम्मिलित करते हैं। मित्रों, यह आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देश ने प्राप्त की हुई सिद्धियों का गुणगान तो गाना है, मगर 100 साल के बाद देश कहां खड़ा होगा, इसकी संकल्पना और इसका संकल्प भी आज की पीढ़ी ने लेना है। जब आजादी के 100 साल समाप्त होंगे तब देश कहां होगा, इसका निर्णय, इसका संकल्प आज की पीढ़ी ने, हमारी देश की जनता ने और देश के युवाओं ने विशेषकर लेना है। इसलिए ये वर्ष हमारे लिए संकल्प का भी वर्ष है। देश के 130 करोड़ की जनता अगर एक एक संकल्प लेती है और जीवन पर्यंत ये संकल्प को पालन करती है तो देश की आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ा जरिया बना है। नरेंद्र मोदी जी ने हम सब के सामने एक संकल्प रखा है, ओजस्वी तेजस्वी भारत का संकल्प, विकसित भारत का संकल्प, समृद्ध भारत का संकल्प, सुरक्षित भारत का संकल्प, संस्कृत और शिक्षित भारत का संकल्प। इस स्वप्न की सिद्धि के लिए हम सब ने इस आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को संकल्प वर्ष के रूप में भी मनाना चाहिए। हम सब ने संकल्प लेकर देश को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जीवन ये संकल्प का पालन करते हुए, पूरा करते हुए पूरा जीवन काम करना चाहिए। आप कल्पना करिए, एक छोटा सा बच्चा अगर एक संकल्प लेता है कि मैं मेरे अन्न की मेरी भोजन की थाली में एक अन्न का दाना भी जूठा नहीं छोड़ूंगा, देश का कितना बड़ा फायदा होता है। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक बच्ची अगर संकल्प ले लेती है कि मैं पूरा जीवन ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन नहीं करूंगी, तो कितने बड़ा फायदा देश का होता है। हम 130 करोड़ लोग आज एक राष्ट्रीय एकता दिन के दिन पर
एक एक संकल्प ले तो 130 करोड़ संकल्पों का संपुट इस देश को आगे बढ़ाने के लिए निश्चित ही परिणाम लक्ष्य होगा। मित्रों, मोदी जी ने अनेक क्षेत्रों के अंदर बदलाव किए हैं। देश की सुरक्षा की बात हो, आर्थिक सुधार की बात हो, आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, मेक इन इंडिया की बात हो, हर क्षेत्र के अंदर मोदी जी ने नए इनिशिएटिव दिए हैं और 7 सालों के अंदर एक अलग प्रकार का भारत का आशा जिसकी कल्पना सरदार पटेल ने की थी, ऐसे भारत के निर्माण की आशा 130 करोड़ के मन में जागृत हुई है। और विशेषकर देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए ये 7 साल देश के 7 करोड़ गरीबों को समर्पित रहे। मोदी जी ने इस 7 साल में देश के 60 करोड़ गरीबों को भारत के आंदोलन के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आजादी के 70 साल तक एक गरीब 60 करोड़ देश के गरीब नागरिक कभी भी अपने आप को देश की विकास प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ नहीं पाते थे। मोदी जी ने एक 7 ही साल में उनके घर में बिजली भेजी, उनके घर में शौचालय बनाकर दिया, उनके घर में गैस का सिलेंडर दिया, उनके घर में शुद्ध पानी पीने का पानी पहुंच रहा है। हर एक व्यक्ति के पास एक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड पहुंचा, जिससे 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भुगतान करे बगैर आज अपने और अपने परिवार की स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। और अब प्रधानमंत्री जी हर घर में नल से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का अभियान भी हाथ में लिए हैं। देश के 60 करोड़ गरीबों को लगता है कि हां, मैं भी देश की विकास यात्रा का हिस्सा हूं। देश के 60 करोड़ गरीबों को लगता है कि हां, मैं भी देश के विकास में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मेरा योगदान दे सकता हूं। ये भावना जो जगी है और 60 करोड़ गरीबों को और कुल मिलाकर 130 करोड़ नागरिकों को देश की विकास यात्रा के साथ, देश की एकता और अखंडितता के साथ जोड़ने का जो यत्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, मैं मानता हूं कि वो हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल के स्वप्न को जरूर पूरा करेगा। एक ऐसा भारत का निर्माण करेगा जो दुनिया के अंदर अपना उचित स्थान प्राप्त करेगा। इन्होंने हमारे सामने, मोदी जी ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है और एक सुरक्षित भारत का लक्ष्य भी रखा है और नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षित भारत का लक्ष्य भी हमारे सामने रखा है। हमारी भाषाओं को गौरव दिलाने का भी लक्ष्य हमारे सामने रखा है। मैं मानता हूं आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन पर, और वो एकता दिवस जो आजादी के अमृत महोत्सव में आया है, उस दिन हम सब संकल्प करें कि सरदार पटेल के बताए हुए रास्ते पर हम पूरा जीवन चलकर इस देश को एक मजबूत देश बनाएंगे, इस देश को सरदार के सपनों का देश बनाएंगे। मैं फिर से एक बार आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ ही समय में हमारे सामने मोदी जी का संदेश आएगा और मोदी जी के संदेश के बाद ये परेड तो समाप्त हो जाएगी, परंतु आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हमारी संकल्प की यात्रा शुरू होगी, इसका मुझे विश्वास है। मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, मेरे साथ जोर से दोनों हाथ उठाए और भारत माता का जयकारा लगाइए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत 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 धन्यवाद माननीय गृह मंत्री महोदय आपका, आपके प्रेरणादायी संबोधन के लिए। पूज्य सरदार ने भारत को एक बनाया, जिससे खिली हमारी अस्मिता, जिससे मिला हमें वजूद। उन्हीं के विचारों एवं दृढ़ता का संकल्प सिद्ध कर हमारे देश की उसी अस्मिता और वजूद को निखार कर दुनिया के सामने एक विकसित देश के रूप में जिन्होंने आकार दिया, पूज्य सरदार के एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने हेतु जो बने सदैव कर्मठ,
वैसे पूरे विश्व में हिंदुस्तान को अलग दर्जा दिलाने वाले भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी, आइए उनकी उपस्थिति की अनुभूति करें उनके संदेश के द्वारा। सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय का संदेश। नमस्कार। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। ये भावना हम देश के कोने कोने में हो रही राष्ट्रीय एकता परेड में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे आयोजनों में भली भांति देख रहे हैं। साथियों, भारत सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है बल्कि आदर्शों, संकल्पनाओं, सभ्यता, संस्कृति, इसके उदार मानकों से परिपूर्ण राष्ट्र है। धरती के जिस भूभाग पर हम 130 करोड़ से अधिक भारतीय रहते हैं, वो हमारी आत्मा का, हमारे सपनों का, हमारी आकांक्षाओं का अखंड हिस्सा है। सैकड़ों वर्षों से भारत के समाज में, परंपराओं में लोकतंत्र की जो मजबूत बुनियाद विकसित हुई, उसने एक भारत की भावना को समृद्ध किया है। लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि नाव में बैठे हर मुसाफिर को नाव का ध्यान रखना ही होता है। हम एक रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। देश अपने लक्ष्यों को तभी प्राप्त कर पाएगा। साथियों, सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, भारत समावेशी भी हो, भारत संवेदनशील भी हो और भारत सतर्क भी हो, विनम्र भी हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह से सक्षम हो रहा है। पिछले 7 वर्षों में देश ने दशकों पुराने अवांछित कानूनों से मुक्ति पाई है। राष्ट्रीय एकता को संजोने वाले आदर्शों को नई ऊंचाई दी है। जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या हिमालय का कोई गांव, आज सभी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। देश में हो रहा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश में
भौगोलिक और सांस्कृतिक दूरियों को मिटाने का काम कर रहा है। जब देश के लोगों को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने से पहले ही 100 बार सोचना पड़े तो फिर काम कैसे चलेगा? जब देश के कोने कोने में पहुंचने की आसानी होगी तो लोगों के बीच दिलों की दूरी भी कम होगी, देश की एकता बढ़ेगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत की इसी भावना को मजबूत करते हुए आज देश में सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक एकीकरण का महायज्ञ चल रहा है। जल, थल, नभ, अंतरिक्ष, हर मोर्चे पर भारत का सामर्थ्य और संकल्प अभूतपूर्व है। अपने हितों की सुरक्षा के लिए भारत आत्मनिर्भरता के नए मिशन पर चल पड़ा है। और साथियों, ऐसे समय में हमें सरदार साहब की एक बात अवश्य याद रखनी चाहिए। सरदार साहब ने कहा था, बाय कॉमन एंडेवर वी कैन रेज द कंट्री टू ए न्यू ग्रेटनेस, while a lack of unity will expose us to fresh calamities. एकता की कमी जहां नए संकट लाती है, सबका सामूहिक प्रयास देश को नई ऊंचाई पर लेकर जाता है। आजाद भारत के निर्माण में सबका प्रयास जितना तब प्रासंगिक था, उससे कहीं अधिक आजादी के इस अमृत काल में होने वाला है। आजादी का यह अमृत काल विकास की अभूतपूर्व गति का है, कठिन लक्ष्यों को हासिल करने का है। ये अमृत काल सरदार साहब के सपनों के भारत के नवनिर्माण का है। साथियों, सरदार साहब हमारे देश को एक शरीर के रूप में देखते थे, एक जीवंत इकाई के रूप में देखते थे। इसलिए उनके एक भारत का मतलब ये भी था कि जिसमें हर किसी के लिए एक समान अवसर हो, एक समान सपने देखने का अधिकार हो। आज से कई दशक पहले उस दौर में भी उनके आंदोलनों की ताकत ये होती थी कि उनमें महिला, पुरुष, हर वर्ग, हर पंथ की सामूहिक ऊर्जा लगती थी। इसलिए आज जब हम एक भारत की बात करते हैं तो उस एक भारत का स्वरूप क्या होना चाहिए? उस एक भारत का स्वरूप होना चाहिए एक ऐसा भारत जिसकी महिलाओं के पास एक से अनेक अवसर हो, एक ऐसा भारत जहां दलित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, देश का प्रत्येक नागरिक खुद को एक समान महसूस करे। एक ऐसा भारत जहां पर बिजली, पानी जैसी सुविधाओं में भेदभाव नहीं, एक समान अधिकार हो। यही तो आज देश कर रहा है। इसी दिशा में तो नित नए लक्ष्य तय कर रहा है। और ये सब हो रहा है
क्योंकि आज देश के हर संकल्प में सबका प्रयास जुड़ा हुआ है। साथियों, जब सबका प्रयास होता है तो उससे क्या परिणाम आते हैं, ये हमने कोरोना के विरुद्ध देश की लड़ाई में भी देखा है। नए कोविड अस्पतालों से लेकर वेंटिलेटर तक, जरूरी दवाइयों के निर्माण से लेकर 100 करोड़ वैक्सीन डोज के पड़ाव को पार करने तक, ये हर भारतीय, हर सरकार, हर इंडस्ट्री, यानी हर एक नागरिक, यानी सबके प्रयास से ही संभव हो पाया है। सबका प्रयास की इसी भावना को हमें अब विकास की गति का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का एक मजबूत आधार बनाना है। अभी हाल ही में सरकारी विभागों की साझा शक्ति को पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के रूप में एक प्लेटफॉर्म पर लाया गया है। बीते वर्षों में जो अनेक रिफॉर्म किए गए हैं, उनका सामूहिक परिणाम है कि भारत निवेश का एक आकर्षक डेस्टिनेशन बन गया है। भाइयों और बहनों, सरकार के साथ साथ समाज की गति शक्ति अगर ये जुड़ जाए तो बड़े से बड़े संकल्पों की सिद्धि कठिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। और इसलिए आज जरूरी है कि जब भी हम कोई काम करें तो ये जरूर सोचें कि उसका हमारे व्यापक राष्ट्रीय लक्ष्यों पर क्या असर पड़ेगा। जैसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाला युवा एक लक्ष्य लेकर चले कि वो किस सेक्टर में क्या नया इनोवेशन कर सकता है। सफलता असफलता अपनी जगह पर है, लेकिन कोशिश बहुत जरूरी है। इसी प्रकार जब हम बाजार में खरीदारी करते हैं तो अपनी पसंद नापसंद के साथ साथ ये भी देखें कि क्या हम उससे आत्मनिर्भर भारत में सहयोग कर रहे हैं या हम उससे उल्टा कर रहे हैं। भारत की इंडस्ट्री भी विदेशी रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स पर निर्भरता के लक्ष्य तय कर सकती है। हमारे किसान भी देश की आवश्यकताओं के अनुसार नई खेती और नई फसलों को अपनाकर आत्मनिर्भर भारत में भागीदारी मजबूत कर सकते हैं। हमारी सहकारी संस्थाएं भी देश के छोटे किसानों को मजबूत करें। हम जितना ज्यादा ध्यान हमारे छोटे किसानों के ऊपर केंद्रित करेंगे, उनकी भलाई के लिए आगे आएंगे, गांव के अत्यंत दूर दूर के स्थानों तक हम एक नया विश्वास पैदा कर पाएंगे। और हमें इसी दिशा में संकल्प लेने के लिए आगे आना है। साथियों, ये बातें सामान्य लग सकती हैं, लेकिन इनके परिणाम अभूतपूर्व होंगे। बीते वर्षों में हमने देखा है कि छोटे समझे जाने वाले स्वच्छता जैसे विषयों को भी जन भागीदारी ने कैसे राष्ट्र की ताकत बनाया है। एक नागरिक के तौर पर जब हम एक भारत बनकर के आगे बढ़े तो हमें सफलता भी मिली और हमने भारत की श्रेष्ठता में भी अपना योगदान दिया।
आप हमेशा याद रखिए, छोटे से छोटा काम भी महान है अगर उसके पीछे अच्छी भावना हो। देश की सेवा करने में जो आनंद है, जो सुख है, उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। देश की अखंडता और देश की एकता के लिए अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए हमारा हर प्रयास ही सरदार पटेल जी के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। अपनी सिद्धियों से प्रेरणा लेकर हम आगे बढ़े, देश की एकता, देश की श्रेष्ठता को नई ऊंचाई दे, इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय आपका। हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के संदेश से प्रेरणा लेंगे एवं माननीय गृह मंत्री महोदय के मार्गदर्शन से संकल्पबद्ध होंगे। माननीय गृह मंत्री महोदय की गरिमामय उपस्थिति के लिए सहृदय आभार व्यक्त करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीए राष्ट्रीय एकता दिवस पर संदेश आप्यो અને સૌથી પહેલા તેમણે સરદાર પટેલને યાદ કર્યા, કહ્યું આપણા સૌના હૃદયમાં છે સરદાર। રાષ્ટ્રીય એકતા પરેડમાં દેશની એકતાની ઝલક દેખાય। સરદાર પટેલ દેશવાસીઓના દિલમાં રહે છે। સરદાર પટેલે દેશ હિતને હંમેશા સર્વોપરી રાખ્યું છે। आभार प्रकट करते हैं माननीय गृह मंत्री महोदय की उपस्थिति के लिए। છેલ્લા 7 વર્ષમાં અનેક બિનજરૂરી કાયદાઓ દૂર કર્યા। સરદાર પટેલ સશક્ત ભારત ઈચ્છતા હતા। આપણે એકજૂટ રહીશું તો જ આગળ વધીશું। એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતની ભાવનાથી દેશમાં આજે આર્થિક સામાજિક ન્યાયીકરણનું મહાઅભિયાન ચાલી રહ્યું છે। અલગ અલગ વિષયો પર પીએમ મોદીએ પોતાના સંબોધનમાં વાત કરી। તેની થોડી જ વાર પહેલા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પણ સંબોધન કર્યું હતું અને તેમાં પણ તેમણે સરદાર પટેલનો સંકલ્પ અને દેશ માટે દેશને એક કરવા માટે સરદારની કટિબદ્ધતા, તેમના સંકલ્પ અને તેમના પ્રયાસોની વાત કરી। આઝાદીના 100 વર્ષ બાદ દેશ ક્યાં હશે તેનો નિર્ણય જનતા અને યુવાનોએ લેવો પડશે તેવું તેમણે કહ્યું।